Hello, dear students. I hope you are doing well. Today we are going to do practice of MS Access. First of all, the scenario here, what is given, it is the database of Al Sahel Real Estate Company. Okay, you are going to name your database as the name of the company, and then you have to create the table of property details, having fields property ID, property type, location, price, and all that. Okay, now what we do, we have to open the MS Access, and then we are going to create a blank database in it, right? First of all, I'm going to select the blank database, and here इसका नाम रखेंगे. Let's suppose Al Sahil Real Estate Company, right? And then you are going to select कि आपने कहाँ पर इसको स्टोर करना है. मैं इसको डेस्कटॉप पे स्टोर करूंगी, सेव करूंगी, and then I'm clicking OK and then create. So you may see here that the company name is here Al Sahel Real Estate Company. Now what is given in the question, that you have to create the table of property details. Okay, then you are going to create a table. Here on create table option, you may select for the first table. Here basically by default table 1 is going to be created, so we can rename it. Click, right click and then save it. Okay, इसका नाम हमने property details रखना है. Okay, property details, right? Sorry for the typo. Okay, now your table name is property details. Now we will be looking at each field and we will be thinking upon the data type of each field, right? आपने data types को specify करना है, table का structure जो है वो बनाना है, तो you are going in the design view of the table. Just right click on the name of the table and select the design view, right? Here you may see all the fields must be here and all the data types that are according to the given data that is already in the table. You have to select those data types from this fields. Okay G, first of all property ID. Okay, property ID. Then here you may see all are in sequence. That means that you may select auto number here. Okay, then further is property type. Okay, type. Okay, then it is in the text form. Okay, you may select short text, long text, whatever available here. Then location. Okay, location, it is again text. Then price, you will look here, यहाँ पर डॉलर का साइन लिखा है, दैट मीन्स, और यहाँ पे देखिए आप जो भी वैल्यूज हैं, इट हैज़ अ स्पेसिफिक फॉर्मेट. So definitely you will be providing the standard format. Here you have written the name of your attribute and then you are going to select the data type as currency. Then in the field properties you go into the format and then you may select from here like जैसा आपने display करवाना है. It has 2 commas, so I am going to select this, right? Then available for, it is again text. Next is bedroom, bedrooms. ओके, ये आपके पास नंबर है. इट इज़ नॉट इन अ सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस में सिर्फ एक ही नंबर होगा, दैट इज योर प्राइमरी की. ऑटो नंबर कोई भी पूरे टेबल में एक ही आपकी डेटा टाइप हो सकती है, तो वो आपकी प्राइमरी की है. सो इट इज नंबर, इट इज नॉट ए सीक्वेंस. नेक्स्ट है फर्निशिंग स्टेटस. फर्निशिंग स्टेटस अगेन टेक्स्ट. listed date.
डेट देखें खास फॉर्मेट में है, इसमें मंथ, डे, ईयर तीनों चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, खास फॉर्मेट में है, सो इसकी डेटा टाइप डेट नेम होगी। देन अगेन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट इट्स फॉर्मेट। Here you may select any of them if the given one is not present. For example, I'm going to select this because the given listed date format is not in my options. Okay, now you have created your table by specifying all the field names provided in the question, and according to that we have provided data types for each field, right? Here you may see a small key symbol which denotes that property ID is your primary key. अब primary key क्या होती है? It identifies your records uniquely. ठीक है, अगर आपने प्रॉपर्टी आईडी 1 जो है वो देखी है तो प्रॉपर्टी आईडी 1 का जो भी रिकॉर्ड है वो डेफिनेटली 1 से ही बिलोंग कर रहा है। जिस तरह आप लोगों के रोल नंबर दैट कांट बी सेम, हर बच्चे को एक यूनिक रोल नंबर असाइन होता है स्कूल के अंदर। तो इन दिस वे यू मे डिसाइड फॉर एनी प्राइमरी की फॉर योर टेबल जो कि यूनिक हो। हर रिकॉर्ड की यूनिक प्राइमरी की होगी, वो किसी भी और दूसरे रिकॉर्ड के लिए यूज नहीं हो सकती। और अगर बिल फर्ज आपका ये प्राइमरी की ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप लोगों ने जिस भी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाना है उधर राइट क्लिक कीजिए और प्राइमरी की को सिलेक्ट कर दें, तो ये एट्रीब्यूट आपका प्राइमरी की बन जाएगा। राइट, नाउ यू क्लोज योर टेबल, डिजाइन व्यू। यस, यू वांट टू सेव चेंजेस। अब यहाँ पर आपके पास देखिए जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड जो हैव क्रिएटेड ऑल आर प्रेजेंट हियर। नाउ यू आर गोइंग टू पुट अप ऑल द एंट्रीज। Apartment, location, Dubai, price, sale, to, furnished, और यहाँ पर आप इसकी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड डेट। तो देख लेते हैं इसको। Now you are going to select from here like 10/1/2024. Okay, 10/1/2024। ठीक है, तो ये अगर आपको नज़र आ रही है तो ये आपके पास डेट आ गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने सारी जो भी हैं एंट्रीज आप अपनी कर लीजिए। ऑटो नंबर है तो आपको इधर प्रॉपर्टी आईडी यू डोंट हैव एनी नीड टू पुट अप दैट, ये खुद ही से एडजस्ट होता जाएगा। नेक्स्ट हम विला के लिए एंट्री करते हैं। देन अबू धाबी, देन 32,100,000, then sale, then 4, then unfurnished, and then any date selection whatever the provided in your table, right? For example this one. Okay, so this way you are going to enter all the records, right? Okay, once you have entered all the data, मैंने just टू जो है वो records enter किए हैं। आप लोगों ने नेक्स्ट देख लेना है, इज देयर एनी क्यूरी टू बी इम्प्लीमेंटेड। फॉर एग्जांपल क्यूरी है आपके पास फाइंड प्रॉपर्टीज फॉर रेंट इन दुबई मैरिना। ओके, ठीक है जी, प्रॉपर्टी डिटेल्स के टेबल में आपके पास ये दुबई की प्रॉपर्टी है और लेट्स सपोज हम इसको रेंट के लिए कर लेते हैं सो दैट हम आउटपुट देख सकें। नाउ you have to design the query from the query wizard. यहाँ पर चूंकि आपके पास एक ही टेबल है तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे। अगर नंबर ऑफ टेबल्स जो है आपके डेटाबेस में हैं तो आप उनमें से रिक्वायर्ड वन को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स जितने भी आपने डिस्प्ले में करवाने हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। देन नेक्स्ट, ओके, लेट्स सपोज हम इसका नाम रख देते हैं दुबई प्रॉपर
properties, right? Finish. So here you may see कि आपके पास टेबल्स के लिए अलहदा से आ गया आपका टेबल टैब आ गई है और क्यूरीज के लिए अलहदा। ये दोनों ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। टेबल्स एंड क्यूरीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर डेटाबेस। सो यहाँ पर ये अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं। आप क्यूरीज में देखें, अभी चूंकि हमने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया क्यूरी को, इसलिए पूरे रिकॉर्ड्स ही डिस्प्ले हो रहे हैं। 2 रिकॉर्ड्स थे हमारे टेबल में, तो ये दोनों सेम डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन अब हम इसको देंगे क्राइटेरिया। नाउ यू मे सी हियर क्यूरी डिजाइन व्यू। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने चूंकि ये देखिए फाइंड प्रॉपर्टीज फॉर रेंट, ठीक है, रेंटेड वैल्यूज उस पर आप लगाएंगे और जहाँ पर दुबई आ रहा है वहां पर देखिए वैल्यूज कहाँ पे अवेलेबल हैं, अवेलेबल फॉर में। ओके, गो टू अवेलेबल फॉर, गो इन द क्राइटेरिया, और जहाँ पर आपने डबल कॉमास रेंटेड प्रॉपर्टीज आपने फाइंड आउट करनी है। और इसके अलावा लोकेशन जो है आपके पास दुबई की आ रही है। ओके, यहाँ पर दुबई की लोकेशन डाल देंगे। ये आपने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। Close it. Yes, I want to save this. Okay, let's open it. Okay, you may see here in original table there are 2 records और आपकी क्यूरीज क्योंकि वो डिपेंड कर रही है कि दुबई में जो रेंटेड प्रॉपर्टीज हैं जस्ट वही शो हो तो दुबई की रेंटेड प्रॉपर्टीज शो कर रही हैं। तो दिस वे यू मे क्रिएट अ नंबर ऑफ क्यूरीज ऑन द टेबल और डिफरेंट व्यूज आप ले सकते हैं अपने टेबल के, राइट? थैंक यू सो मच।